Hello friends, hello children. Welcome once again to my channel, Smita Classes. Today we will be doing the ninth chapter of Standard 7 Science book, Future Kids Science. And this is the ninth chapter, and the chapter name is Respiration in Organisms. Already we have completed 18 chapters, and some of the chapters from back side, that is 16, 17, 18 also we have completed, like our waste story and uh, forest our lifeline, water a precious resource. These three also we have completed 16, 17, 18, and from the front side we have completed 8 chapters till soil. And today we will be doing the ninth chapter, Respiration in Organisms. Soon we will complete this book also. So we will start reading this chapter, Respiration in Organisms, and then I will explain you in details. Respiration in organisms. Living things require energy for the activities of life. Energy is released in cells by the breakdown and oxidation of food in a process known as respiration. The process of respiration involves taking in oxygen, using it for releasing energy by oxidation of food, and eliminating the waste product carbon dioxide and water. The two main processes of respiration are internal respiration and external respiration. Internal respiration or cellular respiration. The oxygen that we breathe in reaches to all our body parts and even to each cell. Since the process of respiration takes place inside the cells of the body, it is also known as cellular respiration or internal respiration or tissue respiration. Respiration is a kind of slow burning of food at ordinary temperature to produce energy. It takes place in the cells of all living organisms. External respiration or breathing, the process in which oxygen is taken inside the body and carbon dioxide is given out by living organisms with the help of their respiratory organs, is known as breathing or external respiration. Breathing is a part of respiration. During breathing, taking in air rich in oxygen is called inspiration. Inhalation, while giving out air rich in carbon dioxide, is called expiration. Exhalation. Breathing is a continuous process which goes on always and throughout the life of an organism. देखिए, सारे जितने भी जीवित प्राणी हैं, सबको एनर्जी की ज़रूरत है ताकि वो अपने दिनचर्या के काम कर सके, अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सके। और एनर्जी कहाँ बनता है? एनर्जी हमारे सेल्स में रिलीज़ होता है। ठीक है, कैसे? हम लोग जो भी फूड खा रहे हैं, ठीक है, जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं, वो ऑक्सीजन के साथ मिलके सेल्स में जाके वो उसका पहले तो उसका ब्रेक डाउन होता है, उसमें से जो न्यूट्रिशन है वो निकलता है, और उसको फिर ऑक्सीजन के साथ मिलके उसका ब्रेक डाउन होता है फूड का, और उससे फिर हम लोग को ये रिलीज़ होता है, एनर्जी रिलीज़ होता है। तो ये रेस्पिरेशन अगर हम बोलेंगे तो बहुत लोग सोचेंगे रेस्पिरेशन सिर्फ सांस लेना होता है। तो रेस्पिरेशन सिर्फ ब्रीथिंग नहीं है, सांस लेना नहीं है। रेस्पिरेशन में क्या है कि फूड इज ऑक्सीडाइज्ड इन द सेल्स एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, इज नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है, तो फूड इज ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है कि फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर रिएक्शन करता है। तो ब्रेक डाउन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द सेल्स अलॉन्ग विथ रिलीज ऑफ एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। उसी को हम एनर्जी रेस्पिरेशन कहेंगे कि फूड टूटेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, कहाँ पे? हमारे सेल्स में, तो उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, जो प्रक्रिया, उसमें क्या है, हम लोग को ऑक्सीजन की बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी, है ना। हम लोग ऑक्सीजन ब्रीथ करके लेंगे तब ना वो फूड को ब्रेक डाउन करेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन फूड के साथ। ठीक है, तो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में क्या है, ऑक्सीजन लेना, उसको यूज़ करके फूड को ऑक्सीडाइज करना, फूड के साथ रिएक्शन करना, एनर्जी रिलीज करना, और साथ ही साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, हर एक रिएक्शन में देखिए कुछ एक यूजफुल प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है। तो इस रिएक्शन में यूजफुल प्रोडक्ट तो एनर्जी होगा, और वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अपने बॉडी से बाहर भी निकालना, तो इस पूरे प्रक्रिया को रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या है? टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेना, यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीजन को यूज करना एनर्जी रिलीज करने के लिए, कैसे? फूड को ऑक्सीडेशन रिएक्शन करके, एंड एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यानी कि रेस्पिरेशन में ये पूरी प्रक्रिया में दो मेन प्रोसेस है उसका, वो क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन और क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन या फिर क्या कहते हैं उसको, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ये क्या कहता है, जब हम लोग जो ऑक्सीजन सांस लेते हैं और जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के भीतर जाता है, वो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स में जाता है, यहाँ तक कि हर एक सेल में भी वो ऑक्सीजन जाता है। ठीक है, तो
और ये जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि वो हमारे सेल्स में ही होती है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है। ठीक है, तो इस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन को चूंकि वो सेल में हो रहा है तो इसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे, या फिर अंदर हो रहा है बॉडी के इसलिए इंटरनल रेस्पिरेशन या टिश्यू रेस्पिरेशन कहेंगे। तीन नाम है, सेलुलर रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और टिश्यू रेस्पिरेशन, बिकॉज ऑक्सीजन इज रीचेज ऑल आवर सेल्स एंड देयर एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं हर एक सेल पे पहुंचेगा और सेल के भीतर जाके रेस्पिरेशन होगा, इसलिए इसका तीन नाम है, सेलुलर, इंटरनल एंड टिश्यू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को अगर हम लोग एक सिंपल तरीके से समझें तो क्या है कि खाना धीरे धीरे जल रहा है, स्लो बर्निंग ऑफ फूड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऐसा नहीं कि आप गैस में बैठा दिए और खाना जल रहा है, वो नहीं, सिंपल जैसा आपका बॉडी टेम्परेचर है उसी में खाना धीरे धीरे जल रहा है और एनर्जी आपके बॉडी को मिलते जा रहा है। ठीक है, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा है, ऐसा थोड़ी है कि खाना गैस में बैठ के जल रहा है जैसे वैसा हो। ठीक है, तो ये जो इंटरनल रेस्पिरेशन है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल में होता है, सारे जीवित प्राणियों के कहाँ पे हो रहा है, सेल में हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग ये रेस्पिरेशन प्रोसेस का सेकेंड पार्ट को देखेंगे जो कि है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन बॉडी के भीतर गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के आया। ठीक है, किसकी मदद से, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की मदद से, नोज और लंग्स की मदद से ऑक्सीजन, एयर तो पूरा गया उसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों है, पर ऑक्सीजन अंदर यूज हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के आया। इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ब्रीथिंग या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है, तो ब्रीथिंग भी रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, सांस लेना भी रेस्पिरेशन का पार्ट है। तो रेस्पिरेशन के दो पार्ट हुए, एक सेलुलर रेस्पिरेशन और एक ब्रीथिंग, सांस लेना। ठीक है, ब्रीथिंग के समय जो है हम लोग एयर लेते हैं, वो एयर ऑक्सीजन रिच होता है, उस एयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होता है और वो हम लोग अंदर सांस लेते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे इनहलेशन। इनहलेशन करना, सांस लेना अंदर, या इंस्पिरेशन करना। ठीक है, और जब हम लोग जो हवा बाहर छोड़ते हैं, जो सांस बाहर छोड़ते हैं, जिसमें कि ज़्यादा अमाउंट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि ऑक्सीजन तो यूज़ हो गया, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है उस स्टेप को क्या कहेंगे, एक्सपीरेशन या एक्सलेशन। तो टेकिंग इन ऑफ एयर is known as inhalation or inspiration, whereas giving out of air rich in carbon dioxide is called expiration or exhalation. तो ब्रीथिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, मनुष्य जितने दिन जीवित रहेगा ब्रीथिंग हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, उसके थ्रू आउट द लाइफ चलता रहेगा ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। Breathing, it is a physical process involving exchange of oxygen and carbon dioxide. Respiration, it is a biochemical process in which glucose is oxidized. Breathing, there is no release of energy. Energy is used in the process of breathing. Respiration, energy is released in this process. Breathing, enzymes are not involved. Respiration, enzymes are involved. Breathing, modes of breathing are different in different organisms. Respiration, details of respiration are similar in every living cell, whether of plants or animals. Breathing, it takes place between cells, organisms and environment. Respiration, it takes place within the cells. A breath means one exhalation and one inhalation. Breathing rate, the number of times a person breathes in 1 minute is known as breathing rate. A normal human being breathes 15 to 20 times per minute. While running or doing heavy physical work, the breathing may increase up to 25 breaths per minute. This is because we require extra energy. While breathing fast, we are consuming more oxygen, which is utilized in breaking down the food to release energy. When a person is sleeping, then the breathing rate is very less as compared to the person who is awake and doing some work. The breathing rate of a person is not constant. It changes according to the oxygen requirements of the body. The breathing rate of children is higher than that of adults. Children breathe about 20 to 30 times per minute. ठीक है, तो अब हम लोग जो है आपको डिफरेंस दिखाएंगे ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच में। ठीक है, ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, जो एक ऐसा प्रोसेस है जो हम लोग महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है
बॉडी के भीतर दोनों कुछ जाएगा, ऑक्सीजन अंदर यूज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आ जाएगा, ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है। जबकि रेस्पिरेशन क्या एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, मतलब कि रेस्पिरेशन एक्चुअली एक तरह का केमिकल रिएक्शन हो रहा है बॉडी के भीतर, जिसमें ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड। ये जो फूड से जो ग्लूकोज होता है उसको ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन होता है, इसलिए वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, वो केमिकल्स के साथ वो रिएक्शन कर रहा है। जबकि ब्रीथिंग जो है वो सिंपल एक फिजिकल प्रोसेस है। आपने पहले भी पढ़ा था ना कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में हम लोग पढ़े हैं फिजिकल और केमिकल प्रोसेस का अंतर, ठीक है। ब्रीथिंग में कुछ भी एनर्जी रिलीज नहीं होता है, इनफैक्ट एनर्जी का ज़रूरत होता है सांस लेने के लिए, ठीक है। जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होता है। ब्रीथिंग में किसी प्रकार के एंजाइम्स की ज़रूरत नहीं होती है सांस लेने के लिए, जबकि रेस्पिरेशन में एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। ब्रीथिंग में अलग अलग प्राणियों का मोड्स ऑफ ब्रीथिंग अलग है, अलग अलग तरीके से वो सांस लेते हैं। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब अपने कई बार अपने सरफेस के ऊपर से भी सांस ले पाता है, जबकि रेस्पिरेशन में ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। जितने भी लिविंग सेल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स का हो कि एनिमल्स का हो, सब में वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एनर्जी देता है। डिटेल्स ऑफ रेस्पिरेशन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेम है, ठीक है। ब्रीथिंग में क्या है, जो भी होगा वो सेल्स और ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में हो रहा है ना। एनवायरनमेंट से एयर जा रहा है और सेल तक पहुंच रहा है और वो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होकर जा रहा है, तो टेक्स प्लेस बिटवीन सेल्स, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। क्योंकि रेस्पिरेशन टोटली सेल के भीतर ही होता है, ठीक है। अब एक ब्रेथ का मतलब क्या है, एक श्वास का मतलब क्या है, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन। ब्रीथिंग रेट क्या होता है, एक पर्सन 1 मिनट में जितनी बार सांस लेता है, ठीक है, उसको ब्रीथिंग रेट कहते हैं, ठीक है। जितनी बार वो एक इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहा है वो एक सांस हुआ, ठीक है। ऐसे करके वो जितनी बार सांसें ले रहा है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ऐसे करके जितनी बार वो सांस ले रहा है 1 मिनट में, उसे कहेंगे ब्रीथिंग रेट, ठीक है। देखिए रेट क्या होता है, हमेशा कोई चीज़ को जब टाइम से आप डिविजन करेंगे तब वो रेट कहलाता है, ठीक है। तो ब्रीथिंग रेट ऐसे ही है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होता है, जो सिंपल स्वस्थ आदमी है, वो 1 मिनट में 15 से 20 टाइम्स वो नॉर्मली ब्रीथ करता है, ठीक है। हर ह्यूमन बीइंग का एक से अलग अलग भी होता है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का एवरेज कैलकुलेट किया कि 1 मिनट में वो 15 से 20 टाइम्स ब्रीथ करेगा। पर जब कोई वही ह्यूमन बीइंग दौड़ रहा है या बहुत ही हार्ड फिजिकल वर्क कर रहा है, भार ढो रहा है कि कुछ पेड़ काट रहा है, ऐसा कुछ वो कर रहा है, तब उसका श्वास तेजी से वह सांस लेता जाएगा और 25 ब्रीथ्स पर मिनट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस समय उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, इसलिए वो ज़्यादा ऑक्सीजन लेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन लेगा तो ज़्यादा रेस्पिरेशन होगा सेल्स में और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। तो जब हम लोग तेज़ी से सांस ले रहे हैं, फास्ट ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो हम लोग ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं और वो ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है फूड को ब्रेक डाउन करने में और एनर्जी रिलीज करने में। अब जब व्यक्ति सो रहा है उस समय तो वो कुछ भी हार्ड वर्क कर नहीं रहा है, उसको बहुत ऑक्सीजन की ज़रूरत है नहीं, बहुत एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो उस समय उसका ब्रीथिंग रेट थोड़ा स्लो होगा, धीरे 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 वह सांस लेता रहेगा, ठीक है। तो एक आदमी का ब्रीथिंग रेट हम कांस्टेंट नहीं कह सकते हैं कि हमेशा यही रहेगा, जो अलग अलग काम के समय उसका ब्रीथिंग रेट अलग अलग रहेगा, जैसे बॉडी को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है उस हिसाब से, ठीक है। बच्चों का जो ब्रीथिंग रेट है वो बड़ों से तेज़ होता है, बच्चे 1 मिनट में ज़्यादा टाइम्स ब्रीथ करते हैं, 20 to 30 टाइम्स 1 मिनट में वो ब्रीथ करते हैं। How do we breathe? The process of breathing takes place in our lungs. We breathe with our nose that has two nostrils. It has tiny hairs and contains sticky liquid known as mucus so that it can filter and clean the inhaled air. The dust particles, bacteria, and other foreign particles stick to the mucus and get entangled in the hair present in the nostrils. Thus, clean air reaches into lungs. Just behind the nostrils, there is a passage known as nasal cavity. The air, after passing through the nostrils where it is cleaned and becomes moist, then passes through the nasal cavity. From the nasal cavity, the moist and warm air passes through the pharynx into the trachea, also known as windpipe. The trachea is a tube that runs from the larynx, also known as voice box, down the neck region into the thorax.
This tube is about 12 centimeter long and gets divided into two smaller tubes known as bronchi, single bronchus, which enter into the two lungs. As shown, lungs are present in the chest cavity. This cavity is surrounded by ribs on the sides. A large muscular sheet called diaphragm forms the floor of the chest cavity. Breathing involves the movement of diaphragm and the rib cage. After reaching the lungs, every bronchus divides to form a larger number of yet smaller tubes known as bronchioles. These bronchioles comprise of minute air sacs at their ends known as alveoli, singular alveolus. The walls of each alveolus have a large number of very thin tubes or blood capillaries. The oxygen combined with the hemoglobin present in the blood to form oxyhemoglobin, and thus this is then carried by the blood to different tissues of the body. Oxygen diffuses into the cells of the body as blood passes to different tissues. From each tissue, blood picks up carbon dioxide and water. These waste products are then transported by the blood to alveoli. From there, they are breathed out or eliminated. हाउ डू वी ब्रीथ, हम लोग कैसे सांस लेते हैं, ठीक है। ये जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो कहाँ होती है, हमारे लंग्स में होती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग टेक्स प्लेस इन लंग्स, ठीक है। हम लोग अपने नाक की मदद से सांस लेते हैं। हम लोग को जो नाक में दो नॉस्ट्रिल है ना, दो होल्स है, उसकी मदद से हम लोग सांस लेते हैं। नॉस्ट्रिल के भीतर क्या होता है, छोटे छोटे बाल होते हैं, टाइनी हेयर रहता है, ठीक है। और उसके भीतर एक स्टिकी लिक्विड होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे हम म्यूकस कहते हैं, ठीक है। क्यों वो चिपचिपा पदार्थ होता है कि जाके एयर उसमें जाके वहाँ थोड़ा एयर में जो डर्ट पार्टिकल होगा वो वहीं चिपक के रह जाए और वो हेयर के थ्रू एयर फिल्टर हो जाए और अंदर जो जाए वो साफ एयर जाए, अंदर जो हवा जाए वो साफ हो जाए। इसीलिए उसका डर्ट वहीं चिपक के रह जाएगा नोज में, और उसका जो और वो हेयर की मदद से वो फिल्टर हो जाएगा और अंदर जाएगा, ठीक है। जो भी डस्ट पार्टिकल हो या बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन पार्टिकल, धूल के छोटे छोटे टुकड़े वगैरह हो, कुछ भी, तो वो सब वहीं चिपक के रह जाएगा म्यूकस में और हेयर में फंस के रह जाएगा, नॉस्ट्रिल्स के हेयर में, और क्लीन एयर हमारे लंग्स में जाएगा, ठीक है। अब जो नॉस्ट्रिल्स के पीछे ही एक पैसेज जैसा रहता है, एक रास्ता बना रहता है जिसे नेजल कैविटी कहते हैं, ठीक है। एयर तो नॉस्ट्रिल में क्लीन हो गया, फिल्टर हो गया और थोड़ा मॉइस्ट भी हो गया, थोड़ा भींग भी गया क्योंकि स्टिकी लिक्विड था वहाँ पे। फिर वो जो है वहाँ से नेजल कैविटी में जाएगा, ठीक है। जो मॉइस्ट और वार्म एयर है वो चला जाएगा कहाँ, नेजल कैविटी में चला जाएगा। फिर नेजल कैविटी के थ्रू वो फैरिंग्स में जाएगा। आप लोग जानते हैं ना कि फैरिंग्स और लैरिंग्स दो हम लोग का ऑर्गन है यहाँ पे, ये एयर पैसेज में है। तो जस्ट हमारे नेजल कैविटी के पीछे तरफ जो है फैरिंग्स रहेगा, तो फैरिंग्स से होते हुए वो आगे जाएगा, ठीक है। फैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया में जाएगा जो कि हमारा विंड पाइप है। नॉस्ट्रिल से हमने सांस लिया, वहाँ क्लीन हो गया, एयर मॉइस्ट हो गया, वहाँ से वो पीछे की तरफ गया, पीछे क्या था, नेजल कैविटी था, वहाँ से और पीछे की तरफ गया, वहाँ पे क्या था, ये फैरिंग्स था। फैरिंग्स से होके वो नीचे इस पाइप में गया, हवा वाला जो पाइप है जिसको ये ट्रैकिया या विंड पाइप कहते हैं। ट्रैकिया एक ट्यूब है जो कि अब है कि वो ट्रैकिया में थोड़ा और अंदर जाने पे एक लैरिंग्स होता है जिसे हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। वहाँ से होते हुए, गर्दन से होते हुए वो थोरैक्स में जाता है, हमारे चेस्ट कैविटी में चला जाता है, ठीक है। तो ये जो ट्यूब है, ट्रैकिया जो ट्यूब है वो 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और वो फिर जाएगा लंग्स में। वहाँ पे वो दो तरफ ब्रांच हो जाता है, ठीक है। और उसमें से फिर छोटे छोटे उसके शाखाएं निकलती, स्मॉलर ट्यूब्स निकलता है जिसको कि ब्रोंकाई कहते हैं। जब बहुत सारे ट्यूब होगा छोटा छोटा उसको ब्रोंकाई कहेंगे, और अकेला अकेला रहेगा उसे ब्रोंकस कहते हैं, ठीक है। और फिर वो चला जाएगा जो है लंग्स में चला जाएगा। देखिए क्या है, नॉस्ट्रिल में गया, फिर नेजल कैविटी में गया, नेजल कैविटी से होके नीचे गया, वो हमारे फैरिंग्स में हुआ, फैरिंग्स से फिर वो वॉइस बॉक्स पे गया, एयर लायरिंग्स पे, फिर वहाँ से ट्रैकिया पाइप में गया, ट्रैकिया जो कि 12 सेंटीमीटर लंबा है। फिर वो ट्रैकिया जाके सीधे ऐसे दो पार्ट में बाइफरकेट कर गया, ठीक है। हर एक दो पार्ट में जो बाइफरकेट किया उसको हम लोग क्या कहेंगे, दो को मिलाएंगे तो ब्रोंकाई कहेंगे, एक अकेला रहेगा तो ब्रोंक्यूल कहलाएगा, ब्रोंकस कहलाएगा, ठीक है। एक राइट साइड के लंग में चला गया, एक लेफ्ट साइड के लंग में।
तो एक को कहेंगे राइट मेन ब्रोंकस और एक को कहेंगे लेफ्ट मेन ब्रोंकस। दोनों लंग्स में चला गया। लंग्स कहाँ था? चेस्ट कैविटी में था। आप लोग जानते हैं कि हम लोग का अपर पोर्शन ऑफ चेस्ट में क्या होता है? रिब केज होता है, हड्डियों का एक पिंजरा जैसा है, ठीक है, जो कि हड्डियाँ पीछे से पूरे जॉइंट नहीं है, थोड़े हवा में फ्लोटिंग टाइप की है ना। तो एक हड्डियों का पिंजरा होता है जिसके भीतर दोनों लंग्स और हार्ट रहते हैं। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये हड्डियों का पिंजरा रहता है, ठीक है, जिसे पिंजर भी कहते हैं, रिब केज कहते हैं। तो ये जो दो ब्रोंकाई था, राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस, वो दोनों रिब केज के अंदर वाले लंग्स में चला गया। ये लंग्स कहाँ था? वही चेस्ट कैविटी में था, ठीक है। वो दोनों लंग्स में बाइफरकेट होके दो टुकड़ों में होके वहाँ पे चला गया, ठीक है। अब जो है ये लंग्स के नीचे एक मसल का एक मोटा लेयर है लंग्स के नीचे, जिसे हम क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं, जो कि हमारा जो चेस्ट कैविटी, पूरा लंग्स का जो चेस्ट का एरिया है, उसके नीचे की जमीन जो है वो कहलाएगा डायफ्राम, ठीक है। फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी कहलाएगा। तो ये डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायफ्राम मसल जो है, क्योंकि डायफ्राम जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम मसल्स जो है वो ही मूव करता है, ठीक है। और साथ साथ में रिब केज भी हिलता है। डायफ्राम और रिब केज दोनों ही मूव करता है, उसी से हम सांस ले पाते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्यूब था ट्रैकिया, वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ब्रोंकस, दो ब्रोंकस में, ठीक है, लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस में। वो फिर वहाँ से कहाँ चला गया? दोनों लंग्स के भीतर चला गया। लंग्स के भीतर जाके और छोटे 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 बहुत सारे ट्यूब्स में वो टूट गया, और उसको कहेंगे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। आप जैसे डायग्राम में देखेंगे, वो छोटे छोटे ट्यूब्स उसका ब्रांच करके निकल गया, ब्रोंक्यूल कहेंगे। हर ब्रोंक्यूल के एंड में क्या है? बैलून जैसा माइन्यूट एयर सैक्स है, छोटा छोटा बॉल्स, हवा में भरा हुआ बॉल्स है वहाँ पे, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्वोलाई कहते हैं। छोटा छोटा एयर का बैलून टाइप का है, जिसे हम एल्वोलाई कहते हैं। अगर एक को बोलेंगे तो एल्वोलस, एक से ज़्यादा बोलेंगे तो एल्वोलाई, ठीक है। अब हर एक एल्वोलाई जो है, हर एक वो जो एयर का बैलून सब है, माइन्यूट एयर सैक्स बोल रहे हैं, मतलब बहुत छोटा छोटा एयर का जो बैलून है, एयर की जो बोरी कहेंगे, सैक है, उसका अंदर का जो वॉल है, ठीक है, उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स है, ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड के पाइप्स है, जुड़े जुड़े हुए छोटे 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 छोटे, ठीक है। अब हम लोग जब सांस लेंगे, एयर फिल्टर होके ऑक्सीजन वहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। ऑक्सीजन वो एल्वोलाई में पहुँचेगा, फिर वहाँ जो कैपिलरी है, जो ब्लड वेसल्स है, उसके ब्लड के साथ वो मिक्स होगा वो ऑक्सीजन। और ब्लड में क्या रहता है? हेमोग्लोबिन रहता है, ठीक है। तो वो हेमोग्लोबिन के साथ वो ऑक्सीजन मिक्स होगा और एक नया कंपाउंड बनेगा, जो क्या होगा? ऑक्सी हेमोग्लोबिन होगा, ठीक है। और फिर वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन हमारे ब्लड के थ्रू होते होते बॉडी के हर एक टिश्यू में पहुँचेगा, ठीक है। तो इस तरह ऑक्सीजन सीधा सीधा नहीं जा रहा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन के रूप में वह हर एक टिश्यू में पहुंच रहा है, ठीक है, बॉडी के हर एक टिश्यू में चला आ रहा है। तो वो टिश्यू से फिर वह डिफ्यूज हो जाएगा, टिश्यू से निकल के वो कहाँ चला जाएगा? सेल, हर एक सेल में चला जाएगा। टिश्यू और सेल में क्या अंतर है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए सिमिलर फंक्शन इज नोन एज अ टिश्यू, ठीक है। तो वो हर एक टिश्यू से होके जो है सेल में डिफ्यूज होके ऑक्सीजन निकल के वहाँ तक चला जाएगा, और वो टिश्यू बदले में क्या करेगा? वो हर एक टिश्यू से जो है, सेल से निकल के आएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वो टिश्यू पे जाएगा, टिश्यू से वो ब्लड ले लेगा, ब्लड में चला जाएगा, ब्लड उसको वापस ले जाएगा एल्वोलाई के पास, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका बताया गया है कि कैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं, सांस कैसे लेते हैं। पर इसका और कॉम्प्लेक्स तरीका आगे है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है, आगे लंग कैपेसिटी एंड ब्रीथिंग रेट क्या होता है। तो फिर प्लांट्स के बारे में है, एनिमल्स के बारे में, और लगता है 2-3 वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ आ रहा है। अभी तक मैंने जितने भी पढ़ाया सिंपल चीज़ें, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए, और समझ में आ रहा है तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करिए, और उनको सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइबर बने, तब आपको अलर्ट भी जाएगा कि जो है नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, उसका अलर्ट आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में।
थैंक यू।